Yes. Good morning, everybody. Welcome to our online classes. I'm Pooja Sharma, your EVS teacher, and today we will continue our chapter number 2. Chapter name is Migration of Families. So let's start. There are many families which migrate from one place to another. One such family is Santu's family. Santu's family lived in a village and their main occupation was agriculture. तो हम यहाँ पर फैमिलीज के माइग्रेशन की बात कर रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना ही क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है. ओके, सो जो फैमिलीज हैं वो माइग्रेट करती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसी तरह की एक फैमिली की हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि किसकी फैमिली है? संतोष फैमिली. And Santu's family lived in a village and their main occupation was agriculture. Okay, जो संतु की फैमिली है वो गांव में रहती है and उनका main occupation means work या job. वो क्या काम करते हैं? That was agriculture. Okay, जिसे हम कहते हैं खेती बाड़ी. Okay, farming करते हैं. But his family had to face a big trouble due to a drought in their village. Okay, but उनके गांव में क्या आ गया? एक big trouble आ गई है, प्रॉब्लम आ गई, डिफिकल्टी. दैट इज ड्रॉट मींस सूखा. ओके, वाटर की जो कमी हो गई है, बारिश रेन नहीं हो रही है प्रॉपरली. ओके, सो जो ड्रॉट की या सूखे की जो प्रॉब्लम है उसे फेस करना पड़ रहा है संतु की फैमिली को. So for the last 2 years, they did not even have sufficient food to eat. And last 2 years से उन्हें sufficient और enough amount में food भी नहीं मिल रहा है खाने के लिए. That is why Santu migrated to his nephew's village with his family and cattle. इसीलिए जो संतु है वो अपने nephew के village में क्या किया है? उसने migrate किया है. मीन्स वो अपने village से अपने nephew के village में चला गया with his family and cattle. अपने families के साथ में and अपने जो भी animals हैं उनके साथ में. There he arranged for a small accommodation on rent and started searching for some occupation. Okay, and वहां पर उन्होंने अपने रहने के लिए accommodation means a place for somebody to live or stay. Okay, अपने रहने के लिए वहां पर उन्होंने रेंट पे किराए पर एक छोटी सी जगह का अरेंजमेंट किया है and started searching for some occupation. और कुछ वर्क या जॉब को वो वहां पर सर्च कर रहे हैं. Okay, after a few days he got work there and therefore he started living in that village with his family. और कुछ दिनों बाद वहां पर उसे वर्क मिल गया है, काम मिल गया है and इसीलिए उसने अपनी फैमिली के साथ उस विलेज में रहना शुरू कर दिया है. However, it was not at all easy for him to live there. Soon he started missing his own village. Okay, and इसीलिए उसको वहां पर जो रहना है वो easy नहीं था उस विलेज में रहना. तो जल्दी ही उसने अपने विलेज को मिस करना शुरू कर दिया. मीन्स उसे अपना जो विलेज था, गांव था, उसकी याद आने लगी. He got news that there was a very good rain in his village this year. और उसे वहां से एक न्यूज मिलती है कि उसके गांव में इस साल बहुत ही अच्छी बारिश हुई है. Therefore, he took his family and cattle with him and returned to his own village. और इसीलिए उसने अपनी फैमिली एंड अपने कैटल्स को लिया एंड अपने गांव में वो वापस आ गया. Clear? Now think and write the answer. First question is, what are the problems which Santu must have faced in the village after migration? Okay, तो यहाँ पर जो हमने संतु की फैमिली के बारे में डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है कि माइग्रेशन के बाद में अनदर विलेज में माइग्रेट किया संतु ने, तो वहां पर उसकी फैमिली को कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना करना पड़ा, फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम्स. So first is Santu's family lived in a village and their main occupation was agriculture. Okay, उनका वहाँ agriculture था main occupation, but his family had faced a big trouble due to a drought in their village. But उनके village में drought आया, वहाँ पर सूखा हुआ, तो उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा. That is why Santu migrated to his nephew village with his family and cattle. Okay, and then when he got a news that in his village there was a very good rain, so he took his family and cattle and returned to his own village. And what is the another problem? That is unavailability of drinking water in the main problem of the village of Santu. Okay, वहां पर उन्हें पीने के लिए water नहीं मिल रहा था proper, and जो enough food था eat करने के लिए वो भी उन्हें properly नहीं मिल रहा था. And third one is there is no suitable occupation available in Santu's village. Okay, संतु के village में suitable occupation या job भी find out वो नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे
माइग्रेट करना पड़ा। If there is any family in your vicinity which migrated to some other place or settled in your area after migration from some other places, then collect the following information about it. Okay, आपके भी अगर फैमिली में या आपकी विसिनिटी में, आपके नेबरहुड में, आपके आसपास के एरिया में अगर ऐसी कोई फैमिली है जिन्होंने की किसी अनदर प्लेस से माइग्रेट किया, ओके, तो आपको उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर्ड करनी है। ओके, तो आप चाहें तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ओके, you should collect the information about your locality on the basis of job or occupation. Okay, and इसके लिए आप अपने किसी फैमिली मेंबर या रिलेटिव्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर द फैमिली माइग्रेटेड टू फ्रॉम विच प्लेसेस। ओके, कहाँ से और कहाँ पर उन्होंने माइग्रेट किया है, व्हाट वर द रीजन फॉर देयर माइग्रेशन, उनके माइग्रेशन की रीजंस क्या हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन देयर फैमिली, उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, एंड हु हेल्प देम, एंड माइग्रेशन में या फिर जो भी उन्हें प्रॉब्लम थी उसमें उनकी हेल्प किसने की। ओके, तो इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Now next देखिए, धीरज has a son and a daughter. धीरज का एक बेटा एंड बेटी है। He was working in a village on the basis of daily wages. Okay, and वो daily wages के बेस पर अपने गांव में क्या करता है, वर्क करता है। ओके, डेली वेजेस मीन्स उससे उसका कोई परमानेंट जॉब नहीं है, वो डेली सुबह मॉर्निंग में अपना कुछ भी वर्क फाइंड आउट करने के लिए निकलता है एंड उसे उसी दिन का क्या किया जाता है, सैलरी या पेमेंट उसी दिन उसे दे दिया जाता है। ओके, तो इसे हम डेली वेजेस कहते हैं, उसके बेस पर वो अपने गाँव में वर्क करता है। His son was studying in 12th standard and his daughter was in 10th standard. और उसका जो बेटा है वो 12th standard में स्टडी कर रहा है एंड उसकी डॉटर 10th standard में। When his son passed the senior secondary examination, then Dheeraj decided to send his son to the city for the higher studies. Okay, and जब धीरज का जो सन है उसने जो अपना सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है मींस 12th क्लास जब उसने पास कर लिया, तो उसने धीरज ने डिसाइड किया कि वो अपने सन को हायर स्टडी के लिए, आगे कॉलेज में पढ़ने के लिए कहाँ भेजेगा, सिटी में भेजेगा। He thought that if his son went to live in the city away from his family for studying, then the expenditure of the family would increase. And उसने सोचा धीरज ने कि अगर उनका बेटा सिटी में जाएगा पढ़ने के लिए, रहने के लिए अपने फैमिली से दूर, तो उनकी फैमिली के जो एक्सपेंडिचर है मीन्स जो खर्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। बिकॉज अब उसे दो जगह पर क्या करना पड़ेगा, मनी स्पेंड करनी पड़ेगी। एक तो जहां उसकी फैमिली रहेगी वहां पर, एंड अनदर प्लेस जहां पर उनका सिटी में उनका बेटा रहेगा। ओके, तो दोनों जगह पर जो मनी है वो स्पेंड करना पड़ेगा। And then his daughter completes her school education after 2 years, then he will have to send her also to the city for the higher education. And 2 years के बाद में जब उनकी बेटी भी क्या कर लेगी, अपनी जो हायर एजुकेशन है वो कंप्लीट कर लेगी, तो उसे भी उन्हें कहाँ भेजना पड़ेगा, सिटी में भेजना पड़ेगा फॉर हायर एजुकेशन की, आगे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए। Therefore, he decided that as he was working on daily wages in his village, he will migrate with his family to the city and do the similar work there also. तो इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि उस अपने विलेज में वो डेली वेजेस पर वर्क कर रहा है ना, उसका वहां पर कोई फिक्स ऑक्यूपेशन या जॉब नहीं है, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ माइग्रेट करेगा, कहाँ मूव करेगा, सिटी में, एंड वहां पर भी जाकर इसी तरह का कुछ सिमिलर वर्क फाइंड आउट करेगा एंड उस वर्क को करेगा। When he moved to the city, he faced a lot of trouble in getting a house on rent. But जब उन्होंने सिटी में मूव किया, माइग्रेट किया, तब उन्हें किराए का घर ढूंढने के लिए बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फेस करना पड़ा। As the rental charges in the city are very high, he took a room on rent far away from the main city. और जो सिटीज हैं वहां पर क्या है, जो रेंटल चार्जेस हैं, किराया है, वो भी बहुत क्या है, ज्यादा है, हाई होता है। सो उन्होंने मेन सिटी से दूर एक रूम क्या लिया, रेंट पर लिया, किराए पर लिया। His family members had to accommodate themselves in that room for all their activities like living together, sleeping, cooking, etc. और उनके फैमिली मेंबर ने अपने आप को उस रूम में क्या किया, अकोमोडेट मीन्स एडजस्ट किया अपने आप को। ओके, जितने भी जो फैमिली मेंबर थे उन्होंने अपने आप को फिट किया उस एक सिंगल रूम में, ताकि उसी में ही वो अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज हैं लाइक लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना, सोना, खाना, जितने भी उनकी एक्टिविटीज हैं, उन सभी एक्टिविटीज को वो उस एक रूम में ही क्या करते थे, कंप्लीट करते थे।
His neighbors were also new for him and he had to make more efforts for daily labor. And जो उनके neighbors थे, पड़ोसी थे, वो भी उनके लिए new थे and वो daily labor में जो भी work find out कर रहे थे job के लिए, अपने जो physical work जो करता था उसके लिए उसे बहुत ही क्या करना पड़ रहा था, efforts करने पड़ रहे थे, प्रयास करने पड़ रहे थे. The expenses of living were very high in the city. That is why he started working as a laborer during daytime, and at night he used to work as a guard to earn more. And cities में जो रहने के खर्चे हैं, expenses हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं. वहाँ सारी जो आपकी daily routine की जो things हैं, वो बहुत ज्यादा costly होती हैं, महंगी होती हैं, उनके rates high होते हैं. Okay, तो उसके जो expenses है family के, उन्हें पूरा करने के लिए उसने क्या किया, धीरज ने डे टाइम में तो वो लेबर का वर्क कर रहा था, मजदूरी करते थे वो डे टाइम में, एंड नाइट टाइम में उन्होंने एक गार्ड की नौकरी कर ली थी. ओके, किसी भी आप हाउस में या फिर जो भी बिल्डिंग है वहां पर उन्होंने एज अ गार्ड ज्वाइन किया था एट नाइट, ताकि वो और ज्यादा अर्निंग कर सके, पैसे कमा सके. But he decided to go back to his village after the completion of higher study of his children. But उसने decide कर लिया कि जैसे ही उसके बच्चों का higher जो education है, studies है, वो complete हो जाएगा, तो वो अपने गांव वापस चले जाएंगे. You must have noticed in your surrounding that there are many students who have to leave their home for higher education. They live in hostels और arrange rooms for rent for their studies. और आपने भी notice किया होगा आपके surrounding में, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे students होंगे जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया है किसके लिए, higher education, higher study के लिए, और वो rent पर room लेकर या फिर hostel में अपने आप को वहां पर वो रह रहे हैं, एंड किसके लिए, अपनी हायर स्टडीज के लिए. Now here points for discussion are: is there any person in your family or in your vicinity who went out of his hometown or shifted in your area from some other places for his studies? So यहाँ पर first question क्या है कि क्या आपकी family में या आपके relatives में कोई ऐसा आप कोई person है जिन्होंने कि अपने hometown को leave किया है, okay, studies के लिए, and वो दूसरी जगह पर जाकर क्या हो गए हैं, shift हो गए हैं. Okay, तो अगर आपके फैमिली में या रिलेशन में कोई इस तरह के पर्सन हैं तो आप उनके बारे में बता सकते हैं. लाइक द सन ऑफ माय यंगर अंकल हु वेंट आउट ऑफ हिज होम टाउन टू दिल्ली. Okay, and my aunt's son shifted to Himachal for getting higher education. And on the other side, son of my maternal uncle went out of his hometown to Jaipur for education purpose. Okay, तो इस तरह से आप भी अपने फैमिली मेंबर्स में, अगर किसी आपके रिलेशन में या फैमिली में किसी ने भी अपनी स्टडीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट किया है, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं. Now, second question is, if you have to shift to some other place for studies, then what things will you take along with you? And अगर आप higher study के लिए another place पर shift करते हैं, तो ऐसी कौन-कौन सी things हैं जिन्हें आप अपने साथ ले जाएंगे? Okay, so if we have shift to some other place for studies, we will take along with us things such as beddings, clothes, chair, table, books, utensils, stove, cylinder, and some documents like birth certificate, PAN card, Aadhaar card, बैंक पासबुक एंड ATM कार्ड एक्सेट्रा. ओके, तो जो भी हमारी नीड्स हैं डेली रूटीन की, जो वो उससे रिलेटेड जितने भी जो थिंग्स हैं वो हम अपने साथ लेकर जाएंगे. Next question is, if there are some students of your school living in a hostel for their studies, then gather information about them, like what type of work they have to do on their own. And आपके अगर क्लास के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी स्टडी के लिए क्या कहाँ रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, बिकॉज वो विलेज से बिलोंग करते हैं एंड वहां पर अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, तो वो एजुकेशन के लिए उन्होंने सिटी में शिफ्ट किया है. एंड अगर आपके स्कूल का कोई हॉस्टल है वहां पर वो रह रहे हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि वो किस तरह का वर्क है जो कि उन्हें अपने आप करना पड़ता है. ओके, जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो वहां पर आपको कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो कि आपको अपने आप करने पड़ते हैं. ओके, like students who live in the hostel for studies have to do washing of clothes, cleaning of utensils and room etc. on their own. तो उन्हें अपने जो clothes हैं वो अपने आप wash करने पड़ते हैं. ओके, अपने utensils हैं जिसमें भी वो food eat करते हैं, वो बर्तन उन्हें खुद से साफ करने होते हैं, and अपने room वगैरह की जो cleaning है वो भी students को खुद करनी पड़ती है.
Now next question is what are the reasons due to which people migrate? कौन कौन से reasons हो सकते हैं जिसकी वजह से people क्या करते हैं, migrate करते हैं, means one place to another place move करते हैं. So there are many reasons, like first one is for higher studies. Okay, higher studies के लिए जो students हैं या people हैं वो one place to another place move करते हैं, migrate करते हैं. Second one is for searching better occupation or job. Third point is for medical facilities. And fourth reason is for marriage purposes. Okay, marriage purposes के लिए भी people जो हैं one place to another place migrate करते हैं. Next is to avail good facility provided by government project. Okay, government कुछ ऐसे ऐसे project start करती है जो जिससे कि cities में उन्हें better जो facilities मिल सकती हैं peoples को, so they can migrate. Next point is due to fight on caste or religions. Okay, caste या religion पर उनके village में fight होती है, so इसकी वजह से भी वो वहां से leave कर देते हैं अपने village को and cities में migrate कर सकते हैं. Next point is for better living standard. And last point is drought, flood, tsunami, storm, etc. are some other reasons. Okay, तो इस तरह से different reason हो सकते हैं जिसकी वजह से people one place to another place migrate करते हैं. Now next question is how do their children complete their studies? And ऐसे people जो one place to another place migrate करते हैं तो जो उनके children हैं, बच्चे हैं, वो अपनी study कैसे complete करते हैं? Because अगर children भी one place to another place migrate करेंगे तो उनका study क्या होता है? Disturb होता है. Okay. So when their parents migrate to another place, the children stay with their grandparents, both maternal and paternal, for studies. And few students have to arrange for hostel or rented houses. Okay, तो वो अपनी मैटरनल या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के पास में रह सकते हैं बच्चे, वहां पर अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं. अदरवाइज वो हॉस्टल्स में या फिर जो रूम है वो रेंट पर लेकर भी अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हैं. Next question is what facilities or arrangements people have to make when they plan to settle down at some new place. And people किस तरह की जो arrangement है या facilities हैं उसको करेंगे ताकि वो new place पर क्या उसके जब वो new place पर set होना चाहते हैं. Okay? तो किस तरह के arrangements उन्हें करने पड़ते हैं. So when people want to settle down at some new places, they must arrange for proper job. सबसे पहले उन्हें अपनी जो proper job है वो arrange करनी पड़ती है ताकि जब वो new place पर settle हो तो वहां पर उन्हें अपनी job से related problems नहीं हो. After that, food and drinking water, home for living, and necessities for their children education. Okay, तो इस तरह से इस की जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबका उन्हें पहले से ही क्या करना पड़ता है, अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है. Okay, so I hope you all understood about this topic. Our next topic we will continue in our next class.